اور مرد خدا ہے، کیوں نہ ہم ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں، چھت پر بنا دیں، تاکہ جب یہ مرد خدا جب کبھی آئے تو وہ اپنی کوٹری میں آرام کرے اور وہاں کھانا کھائے۔ اب اس عورت کو اس بات کی فکر ہے، وہ مرد خدا کے لیے فکر مند ہے کہ وہ دھوپ، دوپہر، شام، بارش، سردی، گرمی نہیں دیکھتا، اور اسے بھی ضرورت ہے کہ جب وہ کبھی آئے تو اپنی کوٹری میں جائے اور آرام کرے۔ آج اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہمیں ایسی فکر ہے؟ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں 10ویں آیت کے اندر، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان کیا کریں؟ لگا دیں۔ کتنی فکر ہے اس کو مرد خدا کی۔ اس کے لیے ایک کٹھیا بنانا چاہتی ہے اور اس کے اندر پلنگ لگانا چاہتی ہے، اور پلنگ کے ساتھ ایک میز اور ایک چوکی بھی رکھنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ شمعدان بھی رکھنا چاہتی ہے کہ خدا کا بندہ جب دعا کرے تو وہ شمعدان جلا کر دعا کرے۔ اور لکھا ہے پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا، کیونکہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں صفائی ستھرائی ہوتی ہے، خدا کا بندہ مقدس ہے، اس کے لیے جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ جب بھی وہ آئے تو اپنی کوٹری میں بیٹھ کر آرام کرے اور دعا کرے۔ اور 11ویں آیت کے اندر، سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹری میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ اس شنومی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاللویا۔ اب شنومی عورت کو مرد خدا نے بلایا، اپنے شاگرد نے، اپنے نوکر جہازی کے رسول سے۔ جب اس نے بلایا تو وہ عورت آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پھر اس نے اپنے خادم سے کہا کہ تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے۔ ہاللویا۔ اب مرد خدا الیشا نبی اس عورت کے متعلق جاننا چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندیشوں میں کیا ہے۔ کیا وہ چاہتی ہے کہ جس نے ہمارے لیے اتنی فکریں کی کہ کوٹری بنائی، پلنگ لگایا، میز، چوکی، شمعدان لگایا، تاکہ جب کبھی مرد خدا وہاں سے گزرے اور اس کا جو ہے آرام گاہ کے لیے اسے اس نے کر دیا۔ تو جب الیشا نبی نے دیکھا کہ وہ اس قدر ہمارے اوپر مہربان ہے، اس نے ہماری فکریں کی ہیں، اس نے کہا جا اس سے بلا لے، اور بلا کر اسے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے کہ ہم تیرے لیے کریں۔ میرے ساتھ رہیے گا، ہم تیرے لیے کریں۔ تو آج جب اس نے خدا کے بندہ کی فکر کی، مرد خدا کی فکر کی، تو اب اس کے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس نے کہا، الیشا نبی کہتا ہے، کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اب الیشا نبی سوچ رہا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہماری بادشاہ کے آگے سفارش کی جائے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ
एलीशा नबी को बहुत मानता था। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। अगर कोई मसला बनेगा तो मैं खुद भी उससे हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने लोगों में रहती हूँ। 14वीं आयत के अंदर फिर मर्दे खुदा सवाल करता है, फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए? जब जहाजी को मर्दे खुदा कहता है एलीशा नबी कि अब इस औरत के लिए क्या किया जाए, तब जहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं है, उसकी औलाद नहीं है। गौर से सुनिएगा जी बहने, जहाजी ने देखा कि उसके पास कोई फर्जंद, कोई औलाद नहीं है। उसका शोहर क्या है? बूढ़ा है, अब उम्र सीधा है, मालदार है, लेकिन उसके पास फर्जंद नहीं है, औलाद नहीं है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। जब मर्दे खुदा एलीशा नबी को पता चला कि उसके पास कोई फर्जंद नहीं है, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, क्योंकि उसका शोहर अब बूढ़ा हो चुका है, तो जब उसने उसे बुलाया और वो आई, तब उसने मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में, तब उसने कहा कि मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में क्या होगा? तेरी गोद में क्या होगा? बेटा होगा। हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरे क्या होगा? गोद में बेटा होगा। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले संडे जो इबादत थी, मैं सोच रहा था, मैंने कहा खुदावंद को चर्च के अंदर नई गवाहियां नहीं है। खुदा ने उसी वक्त 2 गवाहियां पैदा यहाँ की है, और वो भी हमारी बहनें जो थी वो बेऔलाद थी। खुदा ने उन्हें औलाद जैसी बरकत दी है। और लिखा है, उसने कहा, नहीं आए मेरे मालिक, आए मर्दे खुदा, अपनी लोंडी से झूठ ना कह। अब औरत जानती है कि मेरा मर्द बूढ़ा है। उसने कहा, नहीं मेरे मालिक मर्दे खुदा, मुझसे झूठ ना कह, अब मुझसे औलाद नहीं हो सकती, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरा शौहर बूढ़ा हो चुका है, मेरे औलाद नहीं हो सकती, मुझसे झूठ ना कह। 17वीं आयत के अंदर सो वो औरत हामला हुई, और जैसा एलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा पैदा। और जब वो लड़का बड़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया, और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। बेटे के सर में अब दर्द पड़ गई, और उस दर्द की शिद्दत इतनी थी कि वो मर गया। उस दर्द की शिद्दत इतनी तेज थी कि वो लड़का मर गया। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने अपने खादिम से कहा, यानी लड़के के बाप ने अपने नौकर, अपने खादिम से कहा कि उसे उसकी माँ के पास ले जा। जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक
बैठी रही, उसके बाद मर गया। यानी बेटा जो है उसका क्या है जी, बैठा रहा और उसके पास क्या हुआ, घुटनों के पास बैठा रहा और फिर क्या हो गया, मर गया। अब 21वीं आयत के अंदर तब उसकी मां ने ऊपर जाकर उसे मरते खुदा के पलंग पर लटा दिया। हालेलुया, जोरदार खुदा के जलाल के लिए जल्दी से उसने क्या किया कि अपने बेटे को जो मुर्दा था उसको मरते खुदा के पलंग पर क्या कर दिया, लटा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर गई। और उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा कि जल्दी जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मरते खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। बड़ा ईमान है, ये ईमान की बात कर रहा हूं। उसने क्या कहा कि मुझे तेज रफ्तार गधा गाड़ी दे, ताकि मैं दौड़ कर मर्दे खुदा के पास चली जाऊं और फिर वापस लौट आऊं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि 23वीं आयत के अंदर उसने कहा, आज तो उसके पास क्यों जाना चाहती है। अब शोहर मर्दे अपनी बीवी से सवाल करता है कि तू मर्दे खुदा के पास क्यों जाना चाहती है, क्योंकि ना तो आज नया चांद है और ना सबत है। क्यों जाना चाहती है तू मर्दे खुदा के पास, ना तो आज नया चांद है और ना सबत है, तो किस लिए जाना चाहती है। तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है, उस औरत ने जवाब दिया, उसने जवाब दिया अच्छा ही होगा। हालेलुया, उसने कहा अच्छा ही होगा। और उसने गधे पर जहन कसकर अपने खादम से कहा, भौंक, आगे बढ़ और सवारी चलाने में ढील ना डाल जब तक मैं तुझसे ना कहूं। उसने कहा तेज रफ्तार इसको दड़ा जब तक मैं तुझसे ना कहूं, रास्ते में रोकना। सो वो चली और कोई करमल को मर्दे खुदा के पास गई। उस मर्दे खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादम जहाजी से कहा, देख उधर वो शनुमी औरत है, अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ आ जा।